Hello students, today we will discuss about our next topic, industry and trade at the time period of 1950 to 1990. Up to the previous topic in chapter number 2, we have studied about the major goals of the 5-year plans, in which the equity, self-reliance, economic growth and modernization was there. As well as then we have studied about the topic of what was the major policies which has been taken by the government in order to promote our first sector, which was the agriculture sector, in which government has taken the two forms of strategies, land reforms and green revolution. Now today we will discuss about our second one sector, which is the industry and trade. Now the question arises that up to during the time period of 1950 to 1990, which kind of the policies has been taken by the government in order to promote our industrial sector. Now we will discuss about it. Economists have found that poor nation can progress only if they have a good industrial sector. No doubt कि इकोनॉमिस्ट के ऑब्जर्वेशन, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि एक जो पुअर नेशन है, द पुअर पीपल और द पुअर कंट्री, दे कैन प्रोग्रेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर. But what is the reason behind of it? The first one reason is that industry provides employment which is more stable than the employment in एग्रीकल्चर. कि इंडस्ट्री एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जो एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है. एज वेल एज इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल prosperity. ये second reason is that कि with the help of the industry the standard of living can be promoted, new technologies can came into the existence, new social outlook can also came into the existence. Due to this reason we can say the focus is also done on the industrial sector during the time period of 5-year plan. No doubt we have studied in our first one chapter that at the time of the independence there was the very much limited number of industries was there, which was mainly related to the cotton, textile and jute, and the two well-known managed industries was there, which was the iron and steel, one in Jamshedpur and second one in Kolkata. Now after the independence there was a basic requirement in order to promote the industrial sector with a variety of industry, due to which reasons for the overall growth of the economy. Now there were the mainly three policies which was taken under the industrial sector in order to promote it. First one was market and state in Indian industrial development. Second one was industrial policy resolution 1956, and third one was small scale industry. Today we will discuss about it. The first one is their market and state in Indian industrial development. You can also write public and private. मार्केट के प्लेस पे आप प्राइवेट लिख सकते हैं, स्टेट के प्लेस पे आप पब्लिक भी लिख सकते हैं. प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर in Indian industrial development. Market refers to the private sector and state refers to the government sector. Now here there was a big question arise in front of the policy maker. What was that? कि गवर्नमेंट का रोल कितना होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना होना चाहिए. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी में कुछ कंडीशंस थी. इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते प्राइवेट सेक्टर, उनके पास कैपिटल नहीं थी किस पर्पज़ के लिए कि वो हैवी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सके इंडस्ट्रियल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, विच वॉज एज़ पर द डेवलपमेंट ऑफ आर इकोनॉमी. और ना ही मार्केट इतनी बड़ी थी कि कहा जाए कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको एनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ. इवन ऐसे लोगों के पास जिनके पास पैसा था उन्हें भी इतना मोटिवेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मार्केट में इतना स्कोप नहीं था दैट द पीपल विल डिमांड मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि एक इंडस्ट्री तभी प्रमोट करेगी ना जब पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेगी. सो ड्यू टू दीज रीज़न व्हाट हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि स्टेट को एक लीड रोल लेना पड़ा. मीन्स द पब्लिक सेक्टर वाज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. और ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने का डिसीजन था सोशलिस्ट लेवल पर. इट मीन्स कि सोशलिस्ट लेवल मीन्स पब्लिक सेक्टर को जो लीडिंग रोल दिया गया, उसके पीछे ये भी मोटिव था कि इस बहाने गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकती है.
तो हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को ज़्यादा फोकस्ड किया गया। तो स्टेट को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया गया उन सभी इंडस्ट्रीज़ का जो इकोनॉमी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। मीन्स द गवर्नमेंट सेक्टर वाज प्लेइंग द मेजर रोल, और जो पॉलिसीज़ थी प्राइवेट सेक्टर के लिए वो इस तरीके की थी कि जिससे भी उनको या तो वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी लीडिंग रोल ही प्ले करेगा। It means up to the time period of 1950 to 1990, the government has given the major power of the industrial sector in the hands of the public sector, not in the private sector. Major control government ने अपने हाथों में रखा। Okay, the second one policy was there, Industrial Policy Resolution 1956. इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया? नो डाउट इट वाज डिसाइडेड ऑलरेडी कि स्टेट जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी। तो IPR 1956 को अडॉप्ट किया गया, और इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर मेनली इस चीज़ को यूज़ किया गया। इस रिजोल्यूशन ने क्या किया? देखो कि इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। किस काइंड की कैटेगरीज आई? द फर्स्ट कैटेगरी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डाल दिया गया जो मेनली जिसको स्टेट ओन्ड करेगा। मींस इट वाज टोटल पावर विल लाई इन द हैंड ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कि सभी का सभी पूरी पावर पूरी कौन चलाएगा? उसे पब्लिक सेक्टर चलाएगा। सेकंड कैटेगरी में ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डाल दिया गया जो प्राइवेट सेक्टर चला तो सकता था बट पब्लिक सेक्टर के साथ, एंड विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो पूरी की पूरी किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था? कि नई यूनिट को स्टार्ट करने की। प्राइवेट सेक्टर काम तो करेगा बट पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर। और जो थर्ड कैटेगरी में जितनी भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ रह गई थी वो थर्ड कैटेगरी में डाल दी गई, जिनको प्राइवेट सेक्टर ओपन कर सकता था, बट स्टिल देयर वर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस। तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री आ गई जो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई, बट स्टिल ये सेक्टर भी जो था वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल में रखा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। कोई भी नई इंडस्ट्री जो थी, इट वाज नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड जब तक कि कोई वो लाइसेंस ना ले ले फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये पॉलिसी मेनली किस लिए ऑब्टेन की गई लाइसेंस वाली? फॉर प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड एरियाज़, कि बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर जो है वो सेटअप करें ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को। इट वाज इजी, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो लोग बैकवर्ड एरिया में सेटअप करते थे उनके लिए लाइसेंस लेना बहुत इजी था। बट इन एडिशन अगर कुछ यूनिट्स जो हैं उनको इस काइंड के जो बैकवर्ड एरियाज़ में सेटअप कर रहे थे उनको इसके अलावा टैक्स बेनिफिट भी दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की गई। व्हाट वाज द मेजर रीज़न बिहाइंड ऑफ इट? ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ द रीजनल इक्वालिटी। इसका पर्पस मेनली क्या था कि जो है इस ऑब्जेक्टिव के साथ इकोनॉमी में एक जो इनइक्वालिटी बनी हुई है कि ज़्यादा कुछ एरियाज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और कुछ में बिल्कुल भी नहीं है बैकवर्ड एरियाज़ में, उनको प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई। इवन अगर कोई इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग भी है उनको भी किस लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? अगर वो अपनी अगर वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपेंड मीन्स डाइवर्सिफाई, मीन्स कि वो वैरायटी ऑफ गुड्स को और बढ़ाना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। At that point of time, license was also required. Why? What was the reason behind of it? इसका मेन मोटिव क्या था कि इकोनॉमी के अंदर गुड्स जो है सिर्फ उतने ही प्रोड्यूस किए जाएं जितने एक्चुअल में इकोनॉमी में ज़रूरी हैं। और लाइसेंस जो था प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने का सिर्फ तभी दिया जाता था जब गवर्नमेंट इस बात से कन्विंस हो जाती थी कि इकोनॉमी को जो है ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस नहीं दिया जाता था। In short, we can say the whole power is going to be lies in the hands of government only. The last one policy was taken regarding the small scale industry. 1955 में एक कमेटी बनाई गई, the Village and Small Scale Industries Committee, which was also called the कर्ब कमेटी। उनको मेनली किस लिए फॉर्मेट किया गया? दैट दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेट ऑब्जर्व की पॉसिबिलिटीज़ क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करने की, स्पेशली इन द केस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? Small scale industry is defined simply as per the amount to be invested in that industry.
कि एक पर्टिकुलर आपकी फिक्स असेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट है, उस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता था कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या नहीं. टाइम टू टाइम ये इन्वेस्टमेंट चेंज होती रही. एट द पॉइंट ऑफ टाइम 1950 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज दैट यूनिट इन विच द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स असेट वाज ए not more than the 5 lakh. But present time small scale industry is considered that industry in which the maximum investment in the fixed asset is not more than 1 crore. So at that point of time, what was the reason behind of the promotion of the small scale industry? They were just believing that small scale industries are more labor intensive. It means they just use more labor rather than the capital, और rather than as compared to the large scale industries. तो इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फॉर्मेट किया जाएगा उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाएगी. बट वन मोर प्रॉब्लम वाज ऑल्सो देयर कि ये जो इंडस्ट्रीज़ थी ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती थी. सो इन दैट सिचुएशन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको डेवलप करने के लिए क्या करना था, उनको लार्ज फर्म से दूर रखना था. सो ड्यू टू दीज रीज़न द प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत से प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन थी वो रिजर्व कर दी गई. किसके लिए? स्पेशली फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड द मेन थिंग द जो क्राइटेरिया था रिजर्वेशन का वो मेनली इन यूनिट्स की एबिलिटी के ऊपर बेस्ड किया गया था कि ये किस किस काइंड के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और भी कंसेशन दी गई कि लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन प्रोवाइड किए गए लोअर इंटरेस्ट रेट पे इन ऑर्डर टू प्रमोट द ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. So in conclusion, in the case of the industrial sector we can say the government was trying to use, government ने mainly क्या क्या step adopt किए in order to promote the industry and trade or the industrial sector of the Indian economy during the time period of 1950 to 1990. They have firstly used the policy of market and state in Indian industrial development in which the public sector was given the major role in order to promote the industry. Second, they have taken the second step, IPR 1956, in which the industries were categorized into 3 categories. First one for reserved for the public sector, second one public along with the private sector, and fourth one for the third one for the private sector. But still private sector was not allowed to do the work without getting the license. And there was a motive in order to get the regional equality through the setup of industries in the backward areas. After that, the third one policy has been taken by the government, small scale industry. They just reserved some of the industries for the small scale industries in order to promote that, in order to promote the employment. It was believed that कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होती है रेदर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और वो जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते. इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोडक्ट की जो है इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व कर दिया था. और रीज़न क्या था, कौन से ऐसे प्रोडक्ट रिजर्व किए गए जो कि कैपेसिटी में थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जिन्हें मैन्युफैक्चर कर सकती थी. So in our next one topic we will discuss about the third one sector, that is the trade policy. It means the foreign trade policy.